हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं स्टैंडर्ड 11th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर लेने जा रही हूँ, लेक्चर नंबर 4। ओके, तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि माइक्रो का सारा मीनिंग्स हो चुका है, एक्सप्लेनेशन हो चुका है, डेफिनेशन हो चुका है इकोनॉमिक्स का, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रो? Macro means what? The meaning of macro means it is large. It is what? Large. Aggregate. That is total. Okay? What is the meaning of macro? The meaning of macro means large, aggregate, total. Okay? So as the words macroeconomics came from the which word? Which word? It came from the Greek word. Okay, macro means large or aggregate or total. So macroeconomics is there for the study of total areas, entire economy, such as total employment, national income, national output, total investment, etc. Okay, see students, sometimes we all are having our family life, we all are having our family issues, but if the same problem we will discuss regarding at together, so it will be called macro at the large level. Whatever is the program, what we if we conduct, then we say na, that program is very big. So macro here in economics, here I just want to tell you that the meaning of macro is total, aggregate, large, like total savings, total consumptions, aggregate supply, aggregate demand, general price level, etc. And now here you are going to study the definition. So according to Kent Boulding, definition of macroeconomics. Macroeconomics deals with not only individual quantities but with the aggregates of the quantities. Not with the individual incomes but with the national income. Individual prices but with the general price level. Not with the individual output but with the national output. Yes, we all are having our family life. In the same way, government is having, for government the whole country is a family. Yes, for government the whole country is a family. So whatever the problems is solved by the government, like population, services, more employment opportunities, building, construction of buildings, dams, bridges, yes, so that is all what that is considered everything at a large level. So macroeconomics deals with country related problems. Clear you all? So due to that we say macro. और ये आया कहाँ से है? It arises from the Greek word macro, M-A. It arises from the Greek word macro, that is M-A-K-R-O-S. Later on means macro means M-A-C-R-O-S. So always take care regarding M-A-K and here M-A-C. Otherwise exams may you can commit the mistake. So be careful. Okay. So now I'm going to start basic concepts of macro. हाँ students, हर चीज़ का कुछ ना कुछ basic होता है. So here what is the basic? Basic concepts of macro is national income, then saving, then investment, then trade cycles, then inflation, then depression, then economic growth, then economic development. So now I am going to tell you the basic concepts of macro. So first is national income. Now what is the meaning of national income? National income का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है. हर इंसान पैसे के लिए जॉब करता है, बिकॉज पैसे से वो सारी चीज़ों को, हर चीज़ को ले सकता है, एंजॉय कर सकता है. बट मेरा पैसा, आपका पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा, टोटल मिला के वो किसका पैसा बना? पूरे कंट्री का पैसा. सो नेशनल इनकम इज़ अ कंट्रीज़ इनकम. इफ़ आई विल से दैट पर्टिकुलर कंट्री इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, तो कैसे हम लोग उसको बोलते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है? क्योंकि उस कंट्री के गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा होता है. अगर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट कंट्री इज़ अ पुअर कंट्री. सो नेशनल इनकम सिर्फ
सिर्फ आपको, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप रिच हैं, आप पुअर हैं, तो नेबर, आपका नेबर आपको ऑब्जर्व कर लेता है ना, या आपका नेबर अगर रिच है तो आप ऑब्जर्व कर लेते हैं ना कि ये हाँ इस पर्टिकुलर नेबर के पास बहुत पैसा है, ये रिच है, इसके पास पैसा नहीं है, ये पुअर है, आप ऑब्जर्व कर लेते हो ना। ऐसे कंट्रीज़ के भी जो कंट्रीज़ के हमारे जो नेबर्स होते हैं वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि बाबा पर्टिकुलर कंट्रीज़ के पास कितना पैसा है। सो नेशनल इनकम ऑल्सो रिप्रेजेंट द कंट्रीज रेपुटेशन। Clear? So here national income, this reveals the total economic performance of a nation. It is referred to as the total income of a country. In the economic sense, national income is the aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during the year. Now what is the meaning of aggregate monetary value? What is denotes? एग्रीगेट मॉनिटरी वैल्यू का मतलब होता है कि हमारे साल, एक साल में पर्टिकुलर फॉर अ 1 ईयर, फॉर अ करंट ईयर, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेलिंग हुआ, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद आपका कितना टोटल कैलकुलेशन बचा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप इस साल आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, ओके, और लास्ट ईयर आप 11th स्टैंडर्ड में थे, समझो एक एग्जांपल समझो कि इस साल आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपने 12th स्टैंडर्ड में अगर आपको बोर्ड का मार्क्स में, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो आप क्या कर रहे हो, पूरे साल बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, क्योंकि फाइनली आपको मार्च में उसका एग्ज़ाम देना है, तो ही जाके आपका रिज़ल्ट आ रहा है ना पर्टिकुलर 12th, जिस साल आप 12th में हो उस साल के ईयर का। इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क देन यू विल अचीव गुड मार्क्स। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे सो यू विल नॉट रिसीव गुड मार्क्स। तो आपका अकाउंटिंग ईयर, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कितना सेलिंग होता है, दिस ऑल कैलकुलेशन इज कंडक्टेड अंडर द सिस्टम ऑफ नेशनल इनकम। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एग्जाम में आता है, डिफाइन नेशनल इनकम, सो यू ऑल हैव टू लर्न दिस। एंड मैंने बार बार बोला है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको लर्न करना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिकल वर्डिंग ही चाहिए। A national estimate measures the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication. This is the definition that which you have to learn. Now, second is saving. It is that part of the income which is set aside to satisfy the future needs for by foregoing current consumption. In other words, saving is that part of the income which is not spent currently on consumptions. Yes, as the words indicate saving. Saving means बचत। हम लोग जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इट इज़ अवर हैबिट कि हम उसमें से थोड़ा सा पैसा सेव करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज कल को इन फ्यूचर अगर हमारी कोई इमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारा ये सेविंग का मनी हमको काम आए। ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपने इनकम को सेव करती है, ताकि अगर पूरे अभी समझो कहीं किसी भी चीज़ के लिए अगर पब्लिक के लिए खर्चा करने की ज़रूरत पड़े तो वो गवर्नमेंट कर सके। और बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ आती रहती है, कभी फ्लड्स आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है, कभी कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन सब जगहों पे कौन हेल्प करता है? गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो जब वो ये इनकम सेव करती है, बचाती है, तभी तो वो इस सेविंग इनकम को यूज़ करती है। सो नाउ अब सेविंग आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। इट रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट through mobilization of savings, example machinery, equipment, etc. As the name indicates, investment. Investment means what? हम लोग प्लॉट्स खरीदते हैं, बिजनेस के लिए जगह खरीदते हैं, कहीं किसी बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि आज अगर मैं उसमें पैसा लगा रही हूँ तो कल को मुझे उसमें से उसका रिटर्न मिलेगा। हाँ, दैट इज़ डिफरेंट कि वो रिटर्न प्रॉफिट है या लॉस, पर रिटर्न तो मिलता ही है। Yes, so this is called investment. Now, next is trade cycles. Trade cycles are fluctuations in business. They are ups and downs in the overall economic activities. Ups and downs means fluctuations caused by inflation and depression respectively. Yes, trade cycles means, for example, अगर आप अच्छा स्टडी करते हो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है, अगर आप बुरा स्टडी करते हो आपको बुरा मार्क्स मिलता है। इन द सेम वे बिजनेस भी ऐसा ही है। आपने बिजनेस के लिए बहुत एफर्ट्स डाला, आपने बिजनेस के लिए बहुत पैसे भी डाले, लेकिन फिर भी कस्टमर्स आपके पास नहीं आए, आपका बिजनेस लॉस में चला गया। ऐसा भी होता है। कई बार होता है
बिजनेसमैन बहुत स्मार्टली डील करते हैं कस्टमर को, उनके बिजनेस में बहुत प्रोग्रेस होता है, उनको बहुत प्रॉफिट आने लगता है. सो इट इज़ कॉल्ड ट्रेड साइकिल्स. Trade cycles means ups and downs. Business is completely filled with ups and downs. Now, inflation. Inflation is a continuous rise in general price level. Yes, inflation का मतलब होता है महंगाई बढ़ना. और महंगाई तो स्टूडेंट्स हमेशा बढ़ती ही गई है. कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा कि बाबा महंगाई कम हो जाएगी. आज 10-20-50 का फ़र्क हो जाता है. अदरवाइज महंगाई तो हमेशा ही बढ़ती जा रही है, चाहे कोई भी हो, कोई भी सिस्टम हो, महंगाई बढ़ती ही रहती है. सो इन्फ्लेशन मीन्स अ कंटिन्यूस राइज इन द प्राइसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. नाउ नेक्स्ट इज डिप्रेशन. डिप्रेशन इज अ कंटिन्यूस फॉल इन ओवरऑल प्राइसेस एंड लोअरिंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन जनरल. येस, डिप्रेशन मीन्स आपके गवर्नमेंट में गवर्नमेंट इन द सेंस, समझो सबसे पहले मैं आपका खुद का एग्जांपल देती हूँ. मतलब आप कोई भी जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपका इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, आपकी सैलरी ही नहीं बढ़ रही है, आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो भी आपको जितना आपका एक्सपीरियंस है उतना आपको सेविंग अरे सैलरी नहीं मिल रही है. तो ये क्या हो रहा है, डे बाय डे कहाँ जा रहा है, डाउन होते जा रहा है ना. एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा होता है तो हमको इनकम और ज़्यादा मिलना चाहिए, हर साल इंक्रीमेंट होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन. मतलब कहीं ना कहीं हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं. और ऐसा कब होता है, इसलिए हम लोग किसी जो कंट्रीज़ है जो पुअर है, लाइक एग्जांपल सूडान इज़ अ पुअर कंट्री. वाई? बिकॉज उनके यहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं होता, इतना कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है. यस. नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. The term economic growth has a quantitative dimensions. In simple words, economic growth means an increase in the real national income of the country over a long period of time. Yes, what is the meaning of real national income? इनकम तो आपको पता है, क्या सबकी जो इनकम होती है उसको हम लोग इनकम बोलते हैं. रियल का मतलब क्या होता है? What is the meaning of real national income? So the money which denotes the country's income is called real national income. Okay? Now, economic development. This is a wider concept which has a qualitative dimensions. Economic development implies economic growth plus progressive changes in certain important variables which determine well-being of the people. Example, education, health, etc. Yes, the word economic development का मतलब होता है चारों तरफ से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली, टेक्निकली. यस, फ्रॉम ऑल साइड डेवलपमेंट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. क्लियर यू ऑल? सो नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये तो आपको पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया हुआ है. ये डिस्टिंग्विश है, यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं. आप इसमें से 4 to 5 कोई भी लर्न कर सकते हैं. एग्ज़ाम में ये 2 मार्क्स का आता है. एनी 2 पॉइंट्स आपको लिखना है, बट ओनली इन इकोनॉमिकल लैंग्वेज. क्लियर? इसी के साथ आज मैं आपका ये चैप्टर ख़त्म करती हूँ. आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. बाय बाय.